چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ ایان، ایان۔ اور آپ کا نام؟ عبدالحفیظ۔ عبدالحفیظ۔ اور آپ کا نام؟ محمد حماد، محمد حماد۔ اور آپ کا نام؟ محمد حسیب۔ محمد حسیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر یا پیش ہوں، دو زیر دو پیش ہوں یا پھر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو، تو اس کلمے کے آخری حرف کو ہم وقف میں ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر ہوں تو اسے ہم وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ الف سے۔ الف سے بدلیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم گول تا کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ گولتا۔ گول تا کے بارے میں۔ پیارے بچوں، آیت کے اختتام پر یا آیت کے درمیان اگر کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہو اور وہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں تو وقف کرنے کی صورت میں اسے ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن۔ کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن۔ ہا ساکن سے بدلیں گے۔ اب اس کی آپ مثالیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے اور اس سے پہلے گول تا ہے، تو وقف میں اسے ہم ہا ساکن سے بدلیں گے۔ کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن۔ ہا ساکن سے، یعنی اسے پڑھیں گے قوتن، قوتن۔ آگے وقف، آگے وقف۔ قوہ، قوہ۔ قوہ۔ قوہ۔
फिर इसके बाद अगली मिसाल में गोल ता है और इसके नीचे हैं दो ज़ेर, फिर इसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है, लिहाजा जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ता को हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे रक़बतिन, रक़बतिन, आगे वक्फ, आगे वक्फ, रक़बा। रक़बा। फिर इसके बाद अगली मिसाल में गोल ता पर दो पेश हैं और इसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है, लिहाजा जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ता को हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है जी। यानी जारियतुन, जारियतुन, आगे वक्फ, आगे वक्फ, जारिया, जारिया, जारिया। जारिया। समझ में आया बच्चों? जी। अब हम बढ़ते हैं आज की आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हम सूरह लैल की 5वीं आयत पढ़ चुके थे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह लैल की 6ठी आयत सीखेंगे। कौन सी आयत सीखेंगे? 6ठी आयत सीखेंगे। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसद्दक़ बिलहुस्ना। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। और इस पर जो आप हरकत देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि इसे कहते हैं ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। क्या कहते हैं? ज़बर। और ज़बर वाले हर्फ को कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को किस तरह पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बता चुका था कि ऐसे हर्फ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर हम वाव को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है स्वाद। क्या है? स्वाद। अब स्वाद उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है स्वाद, दूसरा हर्फ है सीन और तीसरा हर्फ है सा। जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा करके पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा। मोटा करके पढ़ेंगे। और जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। और इन दोनों की अदायगी के वक्त इनमें सीटी की आवाज आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे स्वाद ज़बर सौ, स्वाद ज़बर सा। और इसे पढ़ेंगे सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा। और इसे पढ़ेंगे सा ज़बर सा, सा ज़बर सा। सौ तो सा सा सा। सा। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ स्वाद पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दाल। क्या है? दाल। अब यहाँ दाल पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ दाल पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ स्वाद से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो इसे भी हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। क्या है? कौफ। अब कौफ भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा पढ़ेंगे क्योंकि कौफ भी हुरूफ़े मुस्तालिया में से है, और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़बर कौ, और इसे पढ़ेंगे काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, कौ कौ का। का। फर्क समझ में आया? जी। अब यहाँ कौफ पर भी ज़बर है तो इसे भी हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है
जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा, क्या है? बा। अब इसके नीचे जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं जेर। क्या कहते हैं? जेर। क्या कहते हैं? जेर। और मैंने आपको बताया था कि जेर वाले हर्फ को भी ज़बर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक कहते हैं। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। लाम। और इस लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। साकिन। अब साकिन हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ बा से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। क्या है? हा। अब हा भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। हलक के दरमियाने हिस्से से। और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हम हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से। यानी इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा, हा ज़बर हा। और इसे पढ़ेंगे हा ज़बर हा, हा ज़बर हा। हा हा। 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 फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ हा पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे कहते हैं पेश। क्या कहते हैं? पेश। पेश। और पेश वाले हर्फ को भी ज़बर और ज़ेर वाले हर्फ की तरह मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक कहते हैं। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो इसे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है सीन और इस पर है जज़म, यानी सीन साकिन है। और मैंने आपको अभी ही बताया कि साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम सीन को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ हा से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है नून। क्या है? नून। और इस नून पर जो आप हरकत देख रहे हैं इसे हम कहते हैं खड़ा ज़बर। क्या कहते हैं? खड़ा ज़बर। और खड़ा ज़बर के बारे में मैंने आपको बताया था कि खड़ा ज़बर वाले हर्फ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम नून को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद गोल दायरा वक्फ की अलामत है, तो लिहाजा यहाँ पर हम वक्फ कर देंगे, यानी आवाज और सांस दोनों को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारी इस आयत के कवायद मुकम्मल हुए। अब आइए हम मिलकर इस आयत की हिज्जे करते हैं, ठीक है जी। वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा। स्वाद दाल ज़बर स्वद, स्वाद दाल ज़बर सद। वसद वसद दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा। वसद 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 क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़बर क़ा। वसद्दक़ 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 वसद्दक़। बा लाम ज़ेर बिल, बा लाम ज़ेर बिल। हा सीन पेश हुस, हा सीन पेश हुस। बिल हुस, बिल हुस। नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना। बिल हुस्ना, बिल हुस्ना। वसद्दक़ बिल हुस्ना। वसद्दक़ बिल हुस्ना। समझ में आया बच्चों? जी। तो आइए अब हम इस आयत को मिलकर दोहराते हैं, ठीक है जी। वसद्दक़ बिल हुस्ना, वसद्दक़ बिल हुस्ना। 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 वसद्दक़ बिल हुस्ना। वसद्दक़ बिल हुस्ना। समझ में आया बच्चों? जी। इसी के साथ हमारा ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहाँ जाकर भी हमारे ये तमाम प्रोग्राम
پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم تیل اور عطر لگانے کی دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ تیل اور عطر لگانے کی دعا۔ تیل اور عطر لگانے کی دعا، بہت آسان سی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں، آپ جب بھی تیل یا عطر لگائیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے پہلے یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب آپ میں سے کون مجھے یہ دعا سنائے گا؟ جی آپ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔